और इसके जो ऑब्वियसली क्लियरली जो दिख रहा है 1 कूलम पर सेकेंड जो है इसके ऐसा यूनिट्स हैं जिसको एक नाम दिया गया है एम्पियर्स, राइट? सो एम्पियर्स इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. I is the current in amperes, Q is the charge in coulombs, T is the time in seconds. Direct current और alternating current की definition है, direct में current remains constant, alternating में current varies sinusoidally with time. ठीक है? इसके अलावा AC versus time varying signal होता क्या है in general ये मैं explain कर चुका हूँ. Time varying signal का मतलब है instantaneous signal, right? AC is a time varying signal, it's a special type of a time varying या instantaneous signal. But in general, we can obviously have many different forms of instantaneous या time varying signals. मिसाल के तौर पे आतिफ असलम का गाना, मिसाल के तौर पे exponentially varying function, right? So these are examples. अच्छा, अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि differential को थोड़ा सा explain करने की दोबारा ज़रूरत है. So the differential is used when charge flowing is time varying and not constant per unit time. Hence gives rise to a time varying current. अगर तो D ना होता, सिर्फ Q होता और T होता, तो दूसरे एंड पे I जो होता, we may as well have written it in capital letters because it would not have been time varying, right? The reason why I is time varying is because Q is time varying. ठीक है? अब because Q is time varying, therefore the amount of charge expended per unit time is time varying, right? मिसाल के तौर पे अगर मैं एक आपको Q of T ड्रॉ करें, हम मिसाल के तौर पे सपोज करें, तो एक Q of T ये बनता है. ठीक है? दिस इज Q of T. इसको हम यूं लिख सकते हैं बिकॉज जनरली इन जनरल दिस इज द नोटेशनल रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल लेटर्स, बिकॉज वी अज्यूमिंग इट कैन वेरी विद टाइम. लेकिन इफ इट्स नॉट वेरिंग इन टाइम देन इट बिकम्स अ स्पेशल केस, तो वी कैन जस्ट से Q, right? Because it's constant, and Q is basically this value here, and this is 0 and this is basically T. So Q is not varying with time, right? But in general, it can have any waveform. For instance, exponentially varying waveform, right? यहाँ पे T है, and then this is basically Q of T, और इसका एक function है. Basically, it has some form. For instance, sorry, Q e to the power minus AT, for instance, right? So it's a time varying function of time. यानी charge is a varying function of time. अब अगर इसको हम इसका यानी अगर हम डेफिनेशन लेते हैं कि जी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज बेसिकली करंट, तो बेसिकली ऑब्वियसली जब इसका dq by dt लेंगे आप, वो भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आएगा. ये तो हमें पता है क्योंकि हमें डेरिवेटिव लेना आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, उसका एक्सपोनेंशियल ही होता है. ठीक है? आगे पीछे ऊपर नीचे इसके जो है कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन फॉर्म यही रहेगा, राइट? फॉर्म इज गोइंग टू बी नेगेटिवली एक्सपोनेंशियली वेरिंग, यही रहेगा. बट द पॉइंट इज कि अगर टाइम वेरिंग होगा आपका जो चार्ज है, तो उसका इन जनरल एक टाइम वेरिंग रिजल्ट ही आएगा. हाँ, अगर ये खुद लीनियर होता, इफ द चार्ज rate of change of charge with respect, if the function if charge would be linearly varying with time, for instance like this, ठीक है, या फिर like this, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट आता है, we know that. तो करंट कांस्टेंट होगा, yes, लेकिन in general it's not going to be constant. Therefore we write small letter I equals dq by dt. ठीक है? We cannot simply write capital Q divided by T because in, for instance, 1 second of time, the amount of charge that is expended is not fixed. पहले 1 second में amount of charge ज़्यादा expend हो रहा होगा, अगले 1 second में कम हो रहा होगा, उसके अगले second में बिल्कुल कम हो रहा होगा, उसके अगले second में बिल्कुल infinitesimally small हो रहा होगा. तो rate of change of charge with respect to time is not fixed. The slope is not fixed, in other words. Right? Slope is the rate of change of charge, rate of change, right, of a function. So the slope is not fixed, therefore we must use this d, right? That is the intuitive meaning of this. ठीक है ना? अगर obviously charge इस फॉर्म में होता, yes it is time varying, ठीक है, तो चार्ज को तो हम Q स्मॉल लेटर से लिखते, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता we could have written as I, ठीक है, but we can also say it's the same as capital I, and capital I happens to be the slope of these whichever function is under consideration. So ये basically dq by dt की explanation हुई. अच्छा, तो इसी तरह से let's just continue and look at what electric current is. So dq by dt, and if we want to obtain the amount of charge that has been expended starting from time to t naught all the way to time t, right? What do? We simply integrate the current.
And current again is a function of time in general. It can be constant, yes, but in general it's a function of time. So I of t dt plus q t naught, right? अब ये q t naught क्यों लगाया गया है यहाँ पे? Sorry? The charge that had been expended up to the initial time. ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारी कोई एक इनिशियल टाइम हमने लिया है t naught एंड वी इंटीग्रेट ऑल द वे टिल टाइम t. लेकिन उस इनिशियल टाइम जो था t naught, तब तक कोई ना कोई चार्ज तो एक्सपेंड हुआ था ना. सिंस एडम वाज बोर्न टिल दैट इनिशियल टाइम, वो कल हो सकता है. मिसाल के तौर पे एडम, सिंस एडम वाज बोर्न, वहां से लेकर कल तक जितना चार्ज एक्सपेंड हो चुका था वो है q ऑफ t naught, और कल से लेकर अब तक वो है t naught टू t का इंटीग्रेशन ऑफ द करंट, राइट? अच्छा, अब obviously if we don't have access to this value, this quantity, then we simply ignore it and we say, अच्छा, you know, the integration that we've done is just from yesterday till today, simply, right? लेकिन if you have access to this, मतलब टाइम 0 से लेकर कल तक जितना चार्ज एक्सपेंड हो गया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं. ठीक है, इस तरह का एक आधा कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो चीज़ मजीद क्लियर होगी, राइट? आगे एक आधा न्यूमेरिकल है भी इसका. सो बेसिकली note that in actuality electrons flow from the negative, अच्छा ठीक है, in actuality electrons flow from the negative end of the battery source through the circuit towards the positive end. In practice मतलब जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा थ्रू द सर्किट और वापस पॉजिटिव एंड में आ जाएगा बैटरी के. ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने एक सर्किट बनाया और सर्किट को जो है हमने हमने एक बैटरी लगाई हुई है. सो बैटरी का सिंबल ये होता है, राइट? आप एक बड़ा वर्टिकल लाइन और एक स्मॉल वर्टिकल लाइन लगा दें, दैट इज सफिशिएंट. बट अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली उसको इंडिकेट करना है तो यू कैन यूज यू कैन बेसिकली डुप्लीकेट दैट 2 times, राइट? ये एक बैटरी है. अच्छा, बैटरी के बाद अगर आपने सर्किट कंप्लीट करना है तो एक तो तरीका ये है. इससे क्या होगा? शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि बेसिकली you are basically allowing an infinite amount of current to flow through the circuit. Why? Because I equals V over R. अच्छा, अब यहाँ पे नोट करें, V स्मॉल लेटर है, I स्मॉल लेटर है, R is capital letter. Why? Because R is fixed. In general, R is fixed, right? Typically R is not written like this. ये resistivity होती है जो कि टाइम वेरिंग हो सकती है किसी एलिमेंट की ड्यू टू टेम्परेचर और वॉट एवर कंडीशंस, बट R in general is fixed. एक रजिस्टर होगा वो फिक्स्ड होगा, राइट? तो एनीवे ये तो होगी नोटेशंस. लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट इज कि यहाँ पे कोई R नहीं है, क्योंकि वायर, एक कॉपर वायर, प्योर कॉपर वायर की रेजिस्टेंस इज वेरी, अगेन, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल. ठीक है, जब वो बहुत स्मॉल है एंड वी अज्यूम मैथमेटिकली, लेट्स अज्यूम कि वो 0 है, तो V over 0 becomes what? Infinity. So potentially an infinite amount of current can flow through this circuit because there is no resistance. There is no current limiting resistance. तो रेजिस्टेंस का जो काम है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, दोनों में क्या फ़र्क है वो मैंने थोड़ा बहुत मंडे को एक्सप्लेन भी किया था. एनीवे, सर्किट्स के अंदर रेजिस्टर का काम ही करंट को लिमिट करना है और उसका कोई काम नहीं. ठीक है, मतलब रेजिस्टर से कोई खुसूसी हमें मोहब्बत नहीं है कि हमारे सर्किट में उठा के उसको लगा देते हैं. इसका काम है करंट लिमिट करना. ठीक है, तो अभी तो हम रेजिस्टिव सर्किट्स पे तकरीबन 2/3 ऑफ द सेमेस्टर रेजिस्टिव सर्किट्स को पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में. ठीक है, उसके बाद हम कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स को भी पढ़ेंगे. लेकिन जब हम कैपेसिटिव सर्किट बनाते हैं या इंडक्टिव सर्किट बनाते हैं, वहाँ पे रेजिस्टर का काम है ही करंट को लिमिट करना. इसके बाद जब हम बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स को पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जब बनते हैं, मिसाल के तौर पे योर मदरबोर्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और उस मदरबोर्ड के ऊपर जो डिफरेंट आईसीज लगी हुई हैं, दोज आर इंटरनली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. ठीक है, सबके अंदर रेजिस्टर्स होते हैं और उनका उसका काम होता है करंट लिमिट करना. तो आपको एक रेजिस्टर लगाना चाहिए. अच्छा, बैटरी पे ये जो मतलब एक्रोबैटिक है, ये आई एम श्योर बहुत लोगों ने की भी होगी, राइट? जिसने नहीं की है वो क्यों नहीं की है, जाके करें. ठीक है, जब आप ये काम करते हैं, अच्छा, ये खुदा के लिए गाड़ी की बैटरी पे नहीं करना या यूपीएस की बैटरी पे नहीं करना, क्योंकि जो कुछ होगा फिर मुझे नहीं आगे पढ़ाना. ठीक है, क्यों? उसका चार्ज ज़्यादा होता है, उसकी रेटिंग, चार्ज की रेटिंग ज़्यादा होती है, उसके अंदर करंट की डिलीवरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन अगर आप स्मॉल जो सेल्स होते हैं, वो जो बैटरी वाले होते हैं, वो कितने के होते हैं? 1.5 वोल्ट होते हैं. वो क्या होते हैं? उसकी करंट की डिलीवरी की रेटिंग ही नहीं होती है, मतलब a few hundred मिली एम्पेयर्स इन दैट्स इट. ठीक है, और वो टिपिकली जो वायर है वो बर्दाश्त कर लेती है. मे बी आप उसको लगा के रखें, शायद कुछ देर बाद गर्म होना शुरू हो जाएगी वायर, लेकिन उससे ज़्यादा कोई आग नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा, कोई धमाका नहीं होगा. ठीक है, तो
तो इसलिए जो है आइडियली यू शुड हैव अ रेजिस्टेंस इन बिटवीन, ठीक है। अब रेजिस्टेंस रजिस्टर के फॉर्म में भी हो सकती है, जो कि कल लैब में हमने यूज़ किए थे और इंशाल्लाह आप लोग वेडनेसडे को यूज़ करेंगे। लेकिन एक सिंपल सा छोटा सा बल्ब भी हो सकता है। आप रेजिस्टेंस को हटा दें, और छोटे बल्ब नहीं होते थे बचपन में जो हम गाड़ियों से तोड़ के खेला करते थे, पता नहीं आप लोग भी खेला या नहीं खेला, एनीवे तो ये भी रेजिस्टर ही है। इसके अंदर जो इंटरनली फिलामेंट है, ऑल इट डज इज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी थ्रू रेजिस्टिविटी, थ्रू रेजिस्टेंस, यही इसका काम है। तो बहरहाल पता नहीं कहा था मैं, हम कर क्या रहे थे पता नहीं। हाँ, सो इन एक्चुअलिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी थ्रू द सर्किट टुवर्ड द पॉजिटिव एंड, राइट। तो बेसिक ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। अच्छा, ये बैटरी का सिंबल है। अगर आपने एक पावर सप्लाई लगानी है तो ये सिंबल है। पावर सप्लाई हमारे पास लैब्स में मौजूद है। पावर सप्लाई सिर्फ ये करती है कि मेन से पावर लेती है, उसको डीसी में कन्वर्ट कर, स्टेप डाउन करके डीसी में कन्वर्ट कर देती है, और वो वेरिएबल होती है। आप उसको नॉब चेंज करके आप जितना पावर लेना चाहे उससे कर सकते हैं। तो कल हमने किया ये काम, और इंशाल्लाह आप लोग वेडनेसडे को करेंगे, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई का सिंबल है, राइट। और ये डीसी पावर सप्लाई का सिंबल है। अगर आप एसी पावर सप्लाई की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे ये जो मेंस का पावर आउटलेट है, दिस इज एन एसी पावर सप्लाई, राइट। यस, इट गिव्स यू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, खैर के एसी है तो फिक्स नहीं होता, लेकिन वो अपनी मर्जी से चेंज हो रहा था ना, हमारी मर्जी से चेंज नहीं हो रहा होता। तो आपने अगर, लेकिन एसी पावर सप्लाईज आते हैं जिनके ऊपर एक नॉब होता है, आप उसको चेंज करेंगे तो आपको एक डिफरेंट पावर देगा। तो बेसिकली एसी पावर सप्लाई का सिंबल ये होता है कि एक एसी की इस तरह की वेव फॉर्म हम लगा देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास एसी पावर सप्लाई की वो है। अच्छा, यहाँ से जो है नेगेटिव टर्मिनल से जो है चार्ज बेसिकली निकलेगा, और करंट का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का फ्लो ये होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट का फ्लो ये होगा, समझ आ गई, ठीक है। दूसरी जानिब जो ये वाला एरो था, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। तो करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो फ्लो है वो बेसिकली ये है, और जो कन्वेंशनल करंट का फ्लो है वो ये है, from the positive side of positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. तो yes, electrons flow in this direction, ठीक है। वैसे थोड़ी सी केमिस्ट्री में अगर आपको याद होगा या नहीं याद होगा, डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या एक और गैल्वेनिक सेल आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि चार्ज का फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता क्या है। लेकिन इन जनरल भी अज्यूम कि जो हमारे पास टिपिकली बैटरीज होती हैं, इनका जो चार्ज का फ्लो डायरेक्शन वो ये है, यानी द चार्ज इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी through the circuit and into the positive terminal. This is what happens in practice, electrons का। लेकिन जो सर्किट एनालिसिस के अंदर जो कन्वेंशन है, जो हर किताब में कन्वेंशन है, जो हमारे कोर्स में कन्वेंशन होगा, वो क्या होगा, वो इस ग्रीन एरो का होगा। We will always assume कि current flows from the positive end of the battery and it goes into the negative end of the battery. This is just a convention so that आगे हम पैसिव साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे और साइंस की को एस्टेब्लिश करना सीखेंगे कि जी एक सर्किट के अंदर कोई एक रेजिस्टर लगा हुआ है तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, करंट किस डायरेक्शन में गुजरेगा तो उसका साइन क्या होगा। करंट होता है, विद नो ऑफेंस टू द लेडीज, और वोल्टेज भी होता है, ठीक है। तो करंट किस डायरेक्शन में गुजरेगा और उसके साइंस किस तरह से हमने एस्टेब्लिश करने हैं, ये हमेशा इस ब्लू डायरेक्शन में हमने स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कन्वेंशन है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। However, in circuit analysis, the convention is to consider electric current to be flowing from the positive end of the battery to the negative end, which is assumed to be at a lower potential. So the negative end is assumed to be at a lower potential. So this is just a mathematical convention. Physically क्या हो रहा होता है, जो होता रहे। We don't really care. Chemists may care, physicists may care, engineers don't really care. That is what this stuff in red is saying. It's telling us, and this is a standard convention. आप कोई भी किताब उठा के देखें उसमें यही होगा, ठीक है, whether it be your textbook or whether it be your reference book, right? अच्छा, let me see हमारे पास I think let's try and finish these few slides. 1:15 बजे किसी को मैस नहीं, आप लोग आउट लिविंग है, वो जबरदस्त हो गया, ठीक है। कोई जीसीज नहीं है, किसी का कोई मैस नहीं मिस हो रहा, एंड आई एम बीइंग रिकॉर्डेड। रिकॉर्डिंग में नहीं, ये बड़ा मसला है, गपशप नहीं लगा सकते हम। अच्छा खैर, अच्छा एक सवाल आया था, वो सवाल आया तो है, ठीक है, मतलब मगर मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन चार्ज रजिस्टर से होकर भी पॉजिटिव एंड पर ही जाएगा तो फिर सर्किट शॉर्ट क्यों नहीं होता। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सानी साहब हैं या साहिबा हैं जो भी हैं,
इनसे मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा इन पर्सन जब नेक्स्ट टाइम आएगा। तो नेक्स्ट टाइम मंडे को तो आप लोग आएंगे ना, तो इनसे थर्सडे को डिस्कशन होगी, तो उस वक्त ये डिस्कस करेंगे। या अब इस तरह है कि आप लोगों के जो सवालात हैं ना इन जनरल भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में, आप लोग संभाल के रख सकते हैं, और लैब में आई एम प्रेजेंट देयर फॉर द फर्स्ट 2 hours एटलीस्ट, और उसमें यू कैन आस्क मी दीज क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर यू दीज क्वेश्चन इंशाल्लाह, जो भी पेशेंस के साथ आई विल आंसर देम। दूसरा ये कि अगर तो कोई ऐसा सवाल हो जो इमीडिएटली मैं उसको आंसर कर सकूं, वो होगा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर टू एंड फ्रो मुझे कम्युनिकेट करना है जो जिन्होंने सवाल किया, बिकॉज वो दे एक्चुअली मीन आई नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। अच्छा, सो फोकस, सो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ये बेसिकली वही कहानी है कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वी नो दैट, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और जो कन्वेंशन है हमारा, हमने वो भी इस्टेब्लिश कर लिया है कि बेसिकली जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वहाँ से पॉजिटिव चार्ज एमिट होता है, और हम जो है वो यहाँ से फ्लो करेगा और वापस इस तरह से आएगा, ठीक है। सो पॉजिटिव मोबाइल चार्जेस कॉल्ड होल्स encountered in p-type silicon, a material widely used in fabrication of ICs. तो एक्चुअली जिस समय आप बता रहा था कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो yes they come out from the negative end of the terminal of the battery and you know move through the circuit and go back into the battery. लेकिन it so turns out that we do have mobile positive charges, right? And they are called holes, right? और वो they are encountered in p-type silicon, right? सिलिकॉन और जर्मेनियम दो मटेरियल्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से मुराद ये है कि वी वांट टू कंट्रोल द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ करंट इन डिफरेंट सिचुएशंस, switches, amplifiers, integrated circuits, and so on. All this is possible because we have semiconductors like silicon and germanium, right? And इनके अंदर इस तरह की current basically वो होती है, and this is something that you will study in the first few weeks of the course on electronic circuits and devices, जो कि आप थर्ड सेमेस्टर में इंशाल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है। सो इक्विवेलेंट इंटरप्रिटेशन, negative mobile charges यानी electrons encountered in ordinary conductor like copper as well as in n-type silicon also widely used in IC fabrication, ठीक है। तो we shall think of, लेकिन however we shall think of current as due exclusively to positive charge flow regardless of actual physical details, ठीक है। तो हम physical details में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा जो circuit analysis में हमेशा इसी तरह charge flow होता है, इसी direction में जो पॉजिटिव एंड से निकलेगा चार्ज और नेगेटिव एंड के पास जो है वो एंटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो आज का आखिरी टॉपिक है वो है बैटरी कैपेसिटी। एक मिनट जरा, हाँ, बैटरी कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ बैटरी टू स्टोर चार्ज, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आवर्स। कोई भी बैटरी है उसकी रेटिंग एम्पियर आवर्स में होती है, ठीक है। व्हेन एम्पियर आवर इज, जो एम्पियर है उसकी डेफिनेशन है कूलम्स पर सेकंड, और आवर की अगर हम SI यूनिट्स में उसको लेकर आए तो 3600 सेकंड्स। एक आवर में 60 मिनट्स, हर मिनट में 60 सेकंड, 60 into 60 is 3600 सेकंड्स, ठीक है। सो 3600 कूलम्स, right? 3600 coulombs. So note that if 0.5 amperes are drained from the battery, it will last for 2 hours, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 एम्पेयर आवर मीनिंग 1 घंटे के लिए अगर उससे 1 एम्पेयर हम ड्रॉ करते रहें तो पूरे घंटे के इख्तिताम के बाद बैटरी ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम 1 एम्पेयर की जगह आधा एम्पेयर ड्रॉ करें तो ऑब्वियसली 2 घंटे तक लास्ट करेगी, ठीक है। सो दिस इज बैटरी कैपेसिटी, ठीक है। इसके ऊपर एक नहीं, आई थिंक इससे रिलेटेड तो नहीं है, बहरहाल एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको करके आई थिंक देन एक अनाउंसमेंट है उसको देख लेते हैं। सो द करंट एंटरिंग ए सर्टेन टर्मिनल इज 10e to the power minus 10 to the power 60 milliamperes, ठीक है। It is an exponentially varying current, exponentially decaying current. It is an instantaneous current. It is a time varying current. कितना अच्छा टाइम है, मतलब आगे ब्रेक है और हम ये ना ओवरफ्लो कर सकते हैं, आधा घंटा और भी ले सकते हैं। नहीं लूंगा, टेंशन ना। Find the total charge entering the terminal between t equals 0 and t equals 1 microseconds. तो टाइम 0 से लेकर 1 माइक्रोसेकेंड्स तक कितना चार्ज फ्लो किया है वो हमने फाइंड करना है, एंड वी नो दैट हमें करंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, आपको खुद आनी चाहिए। सो 10e to the power minus 10 power 60 मिली, ठीक है। मिली एम्पेयर्स था इसलिए मिली। ये चीज अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, राइट। जब भूल जाते हैं तो ऑब्वियसली आंसर गलत आता है, क्योंकि इनिशियली पहला आंसर शायद का सिर्फ ये नैनो जो है इसमें फर्क आए, लेकिन आगे इसके ऊपर जो चीजें डिपेंड करती हैं वो फिर आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज आपने गलती नहीं करनी है। इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम T1 to T2। हमारे केस में T1 और T2 जो है बेसिकली गिवन है 0 to 1 माइक्रोसेकेंड्स, राइट। सो 10 पावर -3 और 10 पावर माइनस, सॉरी, ये जो 10 है और ये 10 पावर -3 जो है ये बन गया 10 पावर -2,
ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गए, e टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 6 t को हमने इंटीग्रेट किया, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग, e टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 6 t, और माइनस 10 टू द पावर 6 जो था, जो कि स्लोप था e टू द पावर at का, a इक्वल्स माइनस 10 टू द पावर 6, उसको हम नीचे ले आए, राइट, बिकॉज दैट इज हाउ इंटीग्रेशन ऑफ, दैट इज हाउ इंटीग्रल ऑफ ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड। t1 टू t2 हमने इसको इंटीग्रेट किया, और t1 टू t2 हमें पता है 0 और बेसिकली 0 और 1 है, ठीक है, और माइनस 10 टू द पावर 60 था, उसको हमने प्लग इन किया है, हमारे पास जो अल्टीमेट रिजल्ट आया 6.321 नैनो कूलम्स, ठीक है। Assuming I of t is due to electron motion, express the above charge in terms of the basic electron charge, ठीक है। इसको हमने इलेक्ट्रॉन चार्ज के से डिवाइड किया है, एंड अल्टीमेटली वी गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज वी आर गिवन के इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन, इसका मतलब नेगेटिव चार्जेस का मोशन है, तो चार्ज जो है वो ऑलरेडी बेसिकली नेगेटिव है, तो इस चार्ज को माइनस 1.602 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल मिल जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। Are electrons entering or exiting the terminal, right? Because the current is due to electron charge, right? Therefore, they obviously exit the terminal. ठीक है. Repeat, but for the interval between t equals 1 microseconds and t equals 2 microseconds. So यही वाली integration आपने दोबारा करनी है, and you will arrive at these conclusions. ठीक है.